Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LADA practice series. Let's start with today's set. And as always, first pause this video right here itself and then proceed on with the rest of the solution. Right, so pause on two screens. So this is the set and on the second screen, we have the problems, right? Now, let's start understanding the set. Let's try to figure out what is actually given in this particular scenario. So Ganga, Kaveri and Namida are three women who buy raw materials, mango, apple, banana, and milk, right? So there are four raw materials, चार raw materials है mango, apple, banana, and milk, and sell five finished products: mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie, and fruit salad. So ये चार प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट? मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, एंड मिक्स फ्रूट स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड, राइट? So basically there are 1, 2, 3, 4, 5 different kinds of finished products. Now Table 1 gives information about the raw materials required to produce the five finished products. So raw materials required. So for example, mango smoothie के लिए what we need is mango and milk. Apple smoothie के लिए we need apple and milk. Banana smoothie के लिए banana and milk and so on, right? Mixed fruit के लिए all the four types, right? Mango, apple, banana and milk. And fruit salad के लिए we need these three raw materials. Perfect. One unit of a finished product requires one unit each of the raw materials mentioned in the second column of the table. राइट नाउ इसमें बेसिकली ये बोल रखा है जैसे मैंगो स्मूदी अगर बनाना है, सो मैंगो स्मूदी का एक यूनिट बनाने के लिए मैंगो का एक यूनिट चाहिए होगा और मिल्क का भी एक एक यूनिट आपको चाहिए होगा. एप्पल स्मूदी के लिए एक यूनिट एप्पल और एक यूनिट आपको मिल्क चाहिए होगा. सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ देन वी हैव द कॉस्ट मेंशन्ड. सो वन यूनिट ऑफ मिल्क, mango, apple, and banana, right? Respectively, mango, apple, and banana cost 5, 3, 2, and respectively. एक एक यूनिट का प्राइस. तो एक तरीके से फॉर एग्जांपल मैंगो स्मूदी का अगर एक यूनिट बनाना है, सो एक यूनिट ऑफ मैंगो, एक यूनिट ऑफ मिल्क चाहिए था, राइट? एक यूनिट ऑफ मैंगो एंड एक यूनिट ऑफ मिल्क. सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि मिल्क एंड मैंगो इन दोनों का जो पर यूनिट का कॉस्ट है 5 and 3 एड अप कर दोगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज 8, राइट? तो दैट इज हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस of one unit of these respective finished products. Then each unit of a finished product is sold at for a profit equal to 2 times the number of raw materials used to make that product. For example, apple smoothie is made with two raw materials, apple and milk, right? Apple smoothie में दो raw materials that count number of raw materials required. So दो raw materials required है. Hence, this will be sold for a profit of double of that too, right? जितना भी number of raw materials required है उनका डबल कर दोगे, दैट विल बी द प्रॉफिट, राइट? तो कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फॉर ईच ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स. देन वी कैन ऑल्सो राइट द प्रॉफिट, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द फाइव डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट. सो उसके एंड में हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, बेसिकली जो हमारा सेल्स होगा फॉर सेलिंग वन यूनिट ऑफ मैंगो स्मूदी एंड सो ऑन, राइट? Now, finally, leftover raw materials are sold during the last business hour of the day for a loss of rupees 1 per unit. Now, we also have this complex scenario. That is the last business hour, R4, last hour. इसमें क्या होने वाला है, जो लेफ्ट ओवर हमारे रॉ मटेरियल्स होंगे, मैंगो, मिल्क, एप्पल एंड बनाना, वो सेल होंगे. और कितने पे सेल होंगे? एट अ लॉस ऑफ रुपीज 1 पर यूनिट. तो उनका जो भी कॉस्ट होगा पर यूनिट का, उसका एक एक रुपए का लॉस पे एक्चुअली में वो सेल हो रहा होगा, राइट? दैट इज क्लियरली गिवन. सो लास्ट दैट इज R4 में वी विल हैव सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, तो उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे. बट इनिशियली R1, 2 एंड 3 में नंबर्स ब्रेक डाउन करने का पूरा सीन है, ठीक है? द अमाउंट इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल्स फॉर ईच वुमन इन द 4 बिजनेस आवर्स ऑफ द डे इज गिवन इन टेबल 2. सो यहाँ पे गंगा का R1 में 23 है. सो विल बी कैलकुलेटेड, एक्चुअली हम लिखेंगे कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसका टोटल सेल्स, एक यूनिट सेल अगर करेंगे तो उसके कितना रुपीज जनरेट होगा, एंड ये नंबर्स को उसी के अकॉर्डिंगली हम ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे. Right, the following additional facts are known. No one except possibly Ganga sold any mango smoothie. Ganga में सिर्फ mango smoothie आ सकता है. Kaveri and Narmada have never sold mango smoothie, and so on. And then we have additional 4 points. Now, let's start putting in numbers in this particular set. So, let's first actually calculate few things. Basic चीज़ें हम calculate कर लेते हैं. सबसे पहले जैसे टेबल 1 में जो हमारा ये डेटा दिया था, ठीक है, और हमें पीछे से कॉस्ट पता है, वी ऑलरेडी नो द कॉस्ट. मिल्क, मैंगो, एप्पल एंड बनाना. लेट्स राइट दैट डाउन. मिल्क, मैंगो, एप्पल एंड बनाना. इनके एक एक यूनिट का प्राइस वी ऑलरेडी नो इन दैट ऑर्डर. मिल्क, मैंगो, एप्पल एंड बनाना 5, 3, 2, 1.
So this is 5, this is 3, this is 2, and this is 1. Now what we can actually do is, एक unit of mango smoothie का हम cost calculate कर सकते हैं. We can actually calculate the CP. Profit पता चल जाएगा through that double of number of raw materials required, and उनका finally selling price पता चल जाएगा. We need these numbers. So let's figure out that first. So mango smoothie, mango plus milk. I'll write that down. Mango plus milk. So this is 3 and 5, so this would be 8. Profit कितना हो जाएगा? 2 articles are required, 2 raw materials are required, so 2 का क्या हो जाएगा? Double हो जाएगा, that is 4. And selling price would finally be what? 12. Then apple and milk. So apple and milk. So apple smoothie, that is apple and milk. So apple and milk, that is 2 plus 5. So this is 2 plus 5. ये कितना हो जाएगा हमारा? 7, right? 2 का double, that will be the profit, and it will be sold at 11 rupees per unit of apple smoothie. Then banana smoothie, banana plus milk, so 1 plus 5. So this is 1 plus 5, so that is 6. 2 का double, that is 4, and it will be sold at 10 rupees. इसमें हमारे चारों रिक्वायर्ड है, मैंगो एप्पल बनाना एंड मिल्क, मैंगो एप्पल बनाना एंड मिल्क. So that will be what? 5, 3, 2, 1, that is 5, 3, 8, 2, 10 plus 1, that is 11. And 4 ka double, that would be the profit, and the total selling price would be 19 rupees. Mango apple banana, mango apple and banana, 3, 2, 1 in that order, 3, 2, 1. So that would be what? 6, and 3 ka double ho jayega, that is 6 would be the profit, and the total selling price would be 12. So now we have the total selling prices. Now I'll just quickly go and read these additional 4 statements. Maybe उसमें कुछ specific information with regards to breaking down these numbers. So let's read these numbers. First, no one except possibly Ganga sold any mango smoothie, right? So mango smoothie, I'll just put that as MS, apple smoothie, banana smoothie BS, MFS mixed fruit smoothie, and fruit salad. So क्या बोलता है? No one except possibly Ganga sold any mango smoothie, right? So गंगा में ही हमारा MS आ सकता है, कावेरी और नर्मदा में विल नेवर हैव MS. सो यहाँ पे भी MS नहीं आ सकता, यहाँ पे भी हमारा MS नहीं आ सकता. ओनली गंगा कुड पॉसिबली हैव MS, राइट? सो ये 12 अगर आएगा, जैसे इसमें कभी 12 अगर आया फॉर एग्जांपल, इसका यूज इस तरीके से करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कावेरी एंड नर्मदा में अगर हम कहीं कह रहे हैं कि 12 हैज टू बी देयर, सो वो 12 कभी भी मैंगो स्मूदी वाला 12 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अ फ्रूट सैलेड वाला 12. सो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, right? So basically we need 12 to come in Kaveri and Narmada. So no one except possibly Ganga sold any mango smoothie, so that is done, first point. Second, each woman sold either 0 or 1 unit of a single finished product in any hour. So इसका क्या मतलब है? जैसे कोई भी जो भी पर्सन होगा, किसी भी एक फिनिश प्रोडक्ट का या तो 1 यूनिट सेल कर रहे होंगे या तो 0 सेल कर रहे होंगे, ठीक है? या तो मतलब कोई भी हम नहीं सेल कर रहे हैं, या तो मैक्स टू मैक्स, अगर जैसे फॉर एग्जांपल गंगा है, इन R1 मैंगो स्मूदी 2 नहीं बेच सकती है, राइट? दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. किसी भी एक फिनिश प्रोडक्ट का मैक्सिमम एक सिंगल यूनिट बेच सकते हैं इन एनी आर, ऑब्वियसली, right? So that is a clarification statement, so we'll be using that. Third, each woman had exactly 1 unit each of 2 different raw materials as leftover. So leftover वाला हमारा पूरा scene final, that is 4th hour में आएगा. So we'll read that again very carefully once we go to that R4. We'll bring that into picture a little later. No one had any banana leftover. Again, this is with respect to the leftover. So leftover में कभी भी banana नहीं है, so कुछ possibility basically वो eliminate करने की बात कर रहे हैं, राइट? सो लेफ्ट ओवर का जो भी पूरा डिस्कशन है, विल अगेन डू दैट. लेफ्ट ओवर वाले में ये भी हम लॉस वाला विल से फिर से हम उसको लेके आएंगे, ठीक है? चलो फिर. तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए अपने को? R1 में जैसे गंगा का 23 है, सो विल लुक फॉर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की 23 हमारा कैसे बन रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे गंगा का 23 कैसे बनेगा? नाउ इन नंबर्स को नोटिस करना स्टार्ट करो. कोई भी इनमें से स्पेसिफिक नंबर 2 बार नहीं आ सकता. वो 2 12 यूज हो सकता है, बट वो दोनों डिफरेंट हमारे फिनिश प्रोडक्ट होंगे ऑब्वियसली. सो 23 कैसे बनेगा? सो इफ आई लुक एट 23, ये हमारा कैसे बनने वाला है? दिस कुड बी अ 12 एंड 11. ओनली पॉसिबिलिटी हमारा अगर नंबर के बेस पे देखें तो 12 और 11 ही आ रहा है. नाउ दैट इज 23, बट 12 एंड 11 में वी कैन नॉट प्रिसाइसली से कि कौन सा हमारा 12 आने वाला है. सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू फॉर गंगा इज, हम बोल सकते हैं इसमें हमारा आइदर वी हैव अ MS और अ FS. ये एक सिंगल 12 तो आएगा, वो कौन सा आएगा? MS या FS, उन दोनों में से कोई एक आएगा. सो आई राइट दैट डाउन, MS या फिर FS में से कुछ आएगा. एंड दूसरा, ये 11 डेफिनेटली आने वाला है, राइट? 11 तो आएगा ही आएगा. सो एप्पल स्मूदी वुड डेफिनेटली बी देयर. सो 23 क्लियर हो गया.
कावेरी का फर्स्ट आर में 19 बनना है, अकेले एक सिंगल 19 प्रेजेंट है तो उसी से बनेगा, कोई दो नंबर के कॉम्बिनेशन से भी 19 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो वी कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे क्या आ रहा है, MFS। ठीक है, देन 31 कैसे बनेगा? 31 अगर हम देखें तो हमारा 19 एंड 12 से बनना है। नाउ गुड थिंग, वही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 19 एंड 12 से बनना है, बट वी कैन नॉट यूज दिस 12, मैंगो स्मूदी इसमें है नहीं। सो 19 एंड 12 वुड बी दिस 19 एंड 12, राइट? सो इसमें MFS इज गारंटीड, एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रूट सैलेड, दैट इज FS। देन R2 पे आते हैं, R2 का टोटल हमारा कितना है, 21। नाउ हाउ डू आई एक्चुअली मेक दैट 21? एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास 21 बनाने की, दैट इज 11 एंड 10, ये दोनों है ना, 11 एंड 10 से हमारा 21 बन सकता है। सो AS एंड BS आएगा यहाँ पे, सो AS एंड BS, राइट? सो AS एंड BS हो गया। देन 22 कैसे बनेगा? 22 बनने का हमारा एक ही पॉसिबिलिटी है, 10 एंड 12, एंड अगेन बिकॉज कावेरी में MS नहीं आ सकता, सो this 10 and this 12 have to be there, so BS and FS, so this is BS and this is FS, that is also done. Then what about this 21 हमारा अगेन 10 और 11 से बनेगा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिल गया, so AS and BS, so this is AS and BS। सो फार सो गुड, अभी तक एक ही पॉसिबिलिटी बस यहाँ पे आई है। R3 में नोटिस करें, R3 में हमारा 29, 30 एंड 23 है। सो 29 कैसे बनने वाला है? डेफिनेटली 19 एंड 10 से ही हमारा 29 बन सकता है। सो इसमें क्या आ जाएगा, BS एंड MFS, सो दिस हैज टू बी MFS एंड BS। 30 कैसे बनेगा? 30 बनाने का हमारे पास क्या तरीका है, 19 and 11, that is the only possibility, right? 19 and 11 is 30, so AS and MFS, so इसमें AS and we have a MFS, and then 23 के लिए भी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 12 and 11, and again because नर्मदा में MS नहीं आ सकता, so ये वाला 12 नहीं आएगा, so it has to be this 12 and this 11, so 12 and 11 gives us 23, so we have a AS and FS in this, AS and FS। सो ये कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन हमने डेफिनेटली फिगर आउट कर लिया। नाउ विल हैव टू गो टू R4 नाउ। अब R4 में हमारा लेफ्ट ओवर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ लेफ्ट ओवर के रिस्पेक्ट में हमारे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा था, ईच वुमेन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एज लेफ्ट ओवर। तो हमारे पास 4 डिफरेंट लेफ्ट ओवर है ना, मिल्क, मैंगो, एप्पल एंड बनाना। सो हर एक वुमन के पास क्या होगा, इन चार में से एक एक यूनिट ऑफ एग्जैक्टली 2। So for example, some person could have a milk and mango, some person could have a milk and apple, 1 unit each, right? That is the first thing. फोर्थ पॉइंट में उसने एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट दिया, कुछ पॉसिबिलिटी उसने एलिमिनेट करा दी, नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट ओवर, तो किसी के पास भी बनाना नहीं है, सो विल नॉट हैव टू वरी अबाउट बनाना। सो हमारे पास अगर नोटिस करो, तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो हमारे पास मिल्क प्लस मैंगो हो सकता है, राइट? या फिर हमारे पास मिल्क प्लस एप्पल हो सकता है, या फिर अपने पास क्या हो सकता है, मैंगो एंड एप्पल। नाउ इन तीनों के रिस्पेक्टिव जो ओवरऑल सेलिंग होंगे वो हमारा लेफ्ट ओवर वाले के करस्पॉन्डिंग होगा। लेफ्ट ओवर वाले में क्या लिखा रहा, लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे फॉर अ लॉस ऑफ ₹1 पर यूनिट। So for example, if some person has 1 unit of milk and 1 unit of mango left over, जो कि इस थर्ड पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है, सो वो उन दोनों लेफ्ट ओवर्स को कितने पे सेल करेगा, वो दोनों पे 1 1 यूनिट का लॉस लेगा। तो जैसे मिल्क एंड मैंगो का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 + 3 8, सो इनको कितने पे सेल करेगा, 8 माइनस 2, 2 कहां से आया, दोनों पे एक एक का लॉस, सो 8 - 2, इसका ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस क्रिएट होगा एज लेफ्ट ओवर मिल्क एंड मैंगो का, that would be 6। मिल्क एंड एप्पल का देखेंगे तो मिल्क एंड एप्पल का ओवरऑल कॉस्ट प्राइस would be 7, 7 माइनस अगेन 2, so that would be 5। देन मैंगो एंड एप्पल देखोगे, मैंगो एंड एप्पल would be 3 + 2 5 कॉस्ट प्राइस, 5 - 2, 5 - 2 that would be 3। सो यही नंबर हमारे इस 30, 27 और 22 में प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड कोई एक नंबर डेफिनेटली प्रेजेंट होगा बिकॉज ईच वुमेन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एज लेफ्ट ओवर्स, परफेक्टली उसने दिया हुआ है। नाउ अब हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस 30, अब इस 30 में या तो इस ये 6 है, या तो ये 5 है, या फिर ये 3 है ना, वो चेक कैसे करेंगे, इस 30 में मान लो अगर ये 6 है, सपोज आउट ऑफ दिस 30 ये 6 हमारा मिल्क एंड मैंगो को सेल करके आया, दीज विल बी द लेफ्ट ओवर। सो 30 - 6 24 फिर किसी कॉम्बिनेशन से बनना भी चाहिए,
राइट, किसी कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। नाउ 24 हमारा क्या किसी कॉम्बिनेशन से बनता है? यस, वी कैन हैव अ 12 एंड 12, राइट, 12 एंड 12 से हमारा बिल्कुल क्रिएट होता है ये, राइट। सो 12 एंड 12, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, क्या इस 30 में ये 5 भी हो सकता है? अगर 30 माइनस 5 करेंगे तो 25 यहाँ से आना चाहिए, बट एब्सोल्युटली नो कॉम्बिनेशन विल गिव मी ऑफ 25, है ही नहीं पॉसिबल, दो वैल्यूज ऐड करके 25 बन ही नहीं सकता। सो इस 30 में 5 तो नहीं है। क्या इस 30 में 3 है? 27 बचना चाहिए 30 माइनस 3, बट यहाँ पे फिर से आप 27 भी नहीं बना सकते। सो दैट एक्चुअली टेल्स मी कि इस 30 में हमारा लेफ्ट ओवर क्या है? मिल्क एंड मैंगो। सो आई राइट दैट डाउन। इसमें हमारा मिल्क, लेट्स इरेज दिस, इसमें हमारा मिल्क है, मैंगो है, एंड एक्चुअली में हमारा 30 माइनस 6 वो जो 24 था उसमें हमें पता है कि 1 यूनिट मैंगो स्मूदी सेल हुआ है और 1 यूनिट हमारा फ्रूट सैलड सेल हुआ है। सो इसमें हमारा MSP है और इसमें हमारा FS भी है, राइट। दैट इज द वे वी हैव टू फिगर आउट दिस। देन इस 27 में चेक करते हैं। अब इस 27 में क्या होगा? इस 27 में अगर 6 है इंक्लूडेड तो 21 आना चाहिए। नाउ 21 अगर नोटिस करोगे तो 11 एंड 10 से आ सकता है, सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। इस 27 में अगर 5 है तो 22 आना चाहिए। नाउ 22 कैसे आएगा हमारा? 10 एंड 12 से, सो यही वाला 10 एंड 12 आ सकता है, तो इसमें हमारा 5 भी पॉसिबल है। क्या इस 27 में हमारा 3 भी आ सकता है? 27 माइनस 3 वुड बी 24। इसमें 24 नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि फिर 12 एंड 12 चाहिए होगा, बट कावेरी में हमारा MS नहीं आ सकता। सो फॉर कावेरी विल हैव टू पॉसिबिलिटीज, राइट। इसमें इस 27 का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? इसमें मिल्क मैंगो हो सकता है। आई कैन राइट दिस, राइट, ऊपर नीचे लिखते हैं। सो इसमें हमारा मिल्क प्लस मैंगो हो सकता है, मिल्क प्लस मैंगो, मिल्क प्लस मैंगो इज 6, और बचा हुआ हमारा 21 कहाँ से आया? इससे AS एंड BS से। सो AS एंड BS, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। या फिर 27 में हमारा 5 भी हो सकता था, दैट इज मिल्क एंड एप्पल। सो मिल्क प्लस एप्पल भी हो सकता है। और अगर हमारा ये 5 हुआ तो 27 माइनस 5 इज 22, तो 22 हमारा कैसे बनेगा? 10 एंड 12 से। सो BS और FS आ जाएगा इसमें। सो BS प्लस FS, राइट। सो फार सो गुड। एंड फाइनली इस 22 के बारे में पॉसिबिलिटी अगर देखें तो 22 माइनस 6 करोगे तो 16 आएगा, इसमें से 16 नहीं है, सो दैट कैन नॉट हैपन। 22 माइनस 5 करोगे तो 17 आएगा, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। 22 माइनस 3 करोगे तो 19 आएगा, एंड अ सिंगल 19 इज देयर। सो इसका फिर से एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो 22 में जो लेफ्ट ओवर है वो क्या है? हमारे मैंगो एंड एप्पल। सो इट हैज टू बी अ मैंगो प्लस एप्पल, राइट। एंड मैंगो प्लस एप्पल विल गिव मी दैट 3 रुपीज, और बचा हुआ 19 कहाँ से आएगा? एक सिंगल यूनिट ऑफ MFS, राइट। सो दैट इज ऑल द पॉसिबिलिटीज वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, एंड नाउ विल एक्चुअली हैव टू गो टू द प्रॉब्लम्स, राइट। अभी प्रॉब्लम्स में भी अपने को थोड़ा बहुत एक्चुअली में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट, लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। Now, first question क्या बोलता है? What best can be concluded about the number of units of fruit salad sold in the first hour? First hour में it is simple. फ्रूट सैलेड का अगर नंबर देखोगे तो फ्रूट सैलेड यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे हमारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बिकॉज वी हैड टू पॉसिबिलिटीज, MS या FS। सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ FS सोल्ड इन द फर्स्ट आवर, इट इज आइदर 1 और इट कैन बी अ 2 ऑल्सो। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन होना चाहिए यस, वी हैव दिस ऑप्शन D, दैट इज आइदर 1 और 2। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू? चेक करना पड़ेगा एक एक करके। सो नर्मदा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क, तो नर्मदा में मिल्क है क्या? नर्मदा में मिल्क वी डोंट हैव दिस, सो दिस डेफिनेटली इज फॉल्स, एलिमिनेटेड। कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोस, कावेरी sold 1 unit of leftover mangoes. Now that is not definitely true, because यहाँ पे milk plus mango भी हो सकता है as leftover, और यहाँ पे milk and apple भी हो सकता है। Milk is definitely unique, but mango is not definitely sold as leftover, so this is not necessarily true. Ganga did not sell any leftover apples. Ganga did not sell any leftover apples, so this is definitely true, because Ganga में we have unique information कि should be selling milk and MS, and as leftovers mango and milk, sorry, mango and milk, इसमें apple नहीं है, hence option C becomes the right answer, right. Now third problem, now this is slightly tricky. Basically we'll have to figure out, again with respect to the possibilities we'll have to check for the numbers very clearly. So third
what best can be concluded about the total number of units of milk the three women had in the beginning? So milk का हमें initial number figure out करना पड़ेगा. So let's do that. हमें 3 × 4 12 नंबर्स के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नाउ डेफिनेटली हमारा मिल्क वगैरह हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा. जैसे एएस में एएस में एएस में हमारा 1 यूनिट ऑफ मिल्क है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तो होगा ही, राइट. एमएस या एफएस, तो डिपेंडिंग ऑन एमएस या फिर एफएस. सो एमएस में देखोगे तो हमारा मिल्क है, और अगर एफ एस एल हुआ है तो उसमें हमारा मिल्क नहीं है, राइट. सो दिस कुड बी अ 0, दिस कुड बी अ 1. सो यहाँ पे R1 में गंगा या तो 1 यूनिट ऑफ मिल्क सेल कर रही है या तो 2 यूनिट ऑफ मिल्क उसने यूज किया है रॉ मटेरियल, ठीक है. सो विल हैव आइदर 1 और 2 ओवरऑल. देन एम एफ एस यहाँ पे इन्वॉल्व है. सो एम एफ एस में हमारा मिल्क है, येस वी हैव 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट एग्जैक्ट आएगा. यहाँ पे भी क्लियर पता है एम एफ एस एंड एम एफ एस में 1 यूनिट ऑफ मिल्क है, वी नो, और एफ एस में हमारा मिल्क नहीं है. सो यहाँ पे क्या आ गया, 0. दैट इज डेफिनेट पॉसिबल. देन एस एंड बी एस में दोनों में हमारा मिल्क है. सो इट इज 1, इट इज 1, तो यहाँ पे 2 आ गया. बी एस एंड एफ एस, अगेन बी एस एंड एफ एस में यहाँ पे मिल्क है, इसमें मिल्क नहीं है. सो बी एस में हमारा 1 आ जाएगा, राइट. और एफ एस में हमारा क्या आ जाएगा, 0. सो बी एस में हमारा यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. ए एस में भी ऑलरेडी हैड 1, इसको यूज करके जल्दी से फिल कर लेते हैं. एम एस एम एफ एस में हमारा 1 आता है, बी एस में हमारा 1 आता है. देन ए एस एंड एम एफ एस, ए एस में 1 आता है, एम एफ एस में भी हमारा 1 आता है. ए एस एन एफ एस, ए एस में 1 आता है, एफ एस में हमारा 0 आता है. और यहाँ पे अगेन R4 में अगर हम मिल्क का क्वांटिटी देखें, सो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा एम एस एंड एफ एस है. सो एम एस, अगेन एम एस में हमारा मिल्क आता है, सो इसमें 1 है डेफिनेटली. एफ एस में हमारा 0 है, और यहाँ पे मिल्क एंड मैंगो है, सो 1 यूनिट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पे मिल्क है हमारे पास, ठीक है. देन यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है, राइट. यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है. अब जैसे फर्स्ट अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन से देखें तो ए एस एंड बी एस, इन दोनों में हमारा 1 और 1 आता है, और मिल्क एंड मैंगो है तो यहाँ पे एक मिल्क आ जाएगा. सो ओवरऑल यहाँ से 3 आ सकता है. अगर हम सेकंड कॉम्बिनेशन से देखें बी एस एंड एफ एस से, तो बी एस में 1 यूनिट ऑफ मिल्क है, एफ एस में हमारा मिल्क नहीं है. सो दिस इज 1, दिस इज 0, और यहाँ पे 1 है. सो ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन से या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो यहाँ पे 2 आएगा, राइट. विल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग. 3 या फिर 2 हो सकता है. और यहाँ पे फाइनली हमारा मैंगो है और एप्पल है, तो इसमें तो नहीं है. एमएफएस में 1 यूनिट हमारा डेफिनेटली मिल्क है. नाउ इफ आई एक्चुअली कैलकुलेट, हमारे पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज आएंगे और वो तुम्हें क्वेश्चन से भी समझ में आएगा. सो जैसे डेफिनेट वाले अगर कैलकुलेट कर ले, राइट. सो 1 1 2, लेट्स यूज डार्क कलर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16. तो 16 तो मेरा डेफिनेटली है. नाउ 16 के अगर हम बियॉन्ड देखें, तो 16 के अगर हम बियॉन्ड देखें तो क्या क्या आ सकता है हमारा. एक तो 1 यहाँ आ सकता है, राइट. एक हमारा 1 यहाँ आ सकता है, और यहाँ अगर नोटिस करो, राइट, इसमें इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है. ये 1 आ सकता है, और इन दोनों में से कोई एक आ सकता है हमारा, सपोज. तो एक एक्स्ट्रा मतलब 0 या फिर 1 आ सकता है एक यहाँ से, और यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें या तो 3 आएगा या तो हमारा 2 आएगा, राइट. या तो 2 आएगा या तो हमारा 3 आएगा. तो यहाँ से हमारे पास अगर सारे पॉसिबिलिटी देखो तो क्या हो सकता है. 16 के साथ 0 और 2 मिनिमम तो ये बनेगा, दैट इज 18 मिनिमम. और मैक्सिमम देखोगे तो 16 3 और 1, राइट. 16 3 एंड 1 आ सकता है, दैट इज 20. एंड इन बिटवीन देखोगे तो तुम्हारा 19 भी आ सकता है, बिकॉज 16 3 इज 19 और उसके साथ 0. सो 18 19 एंड 20, all three are actually possible. So that is option A. Finally, if it is known that that 3 leftover units of mango were sold during the last business hour of the day, how many apple smoothies were sold during the day? So 3 leftover units of mango are sold during the last business hour. तो last में हमारा leftover में 3 यूनिट्स ऑफ मैंगोज आना चाहिए. तो 1 यूनिट ऑफ मैंगो हमारा यहाँ पे है, 1 यूनिट ऑफ मैंगो डेफिनेटली यहाँ पे है. अब तीसरा यूनिट डेफिनेटली यहीं पे आएगा. सो इट इज इनडायरेक्टली सेइंग कि यहाँ पे हमारा
ये वाला कॉम्बिनेशन एक्चुअली में यूज होना है, बिकॉज इसी में हमारा क्या है, मैंगो है। अब उसके बेस पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी एप्पल स्मूदीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द डे। नाउ एप्पल स्मूदीज कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 एंड फाइनली इसमें एप्पल स्मूदी है नहीं, इसमें एप्पल स्मूदी है नहीं, यहां वाला एप्पल स्मूदी फाइनली काउंट होगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द आंसर टू द लास्ट प्रॉब्लम वुड बी 6। अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, राइट, थोड़ा केयरफुल रह के कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, बट एन इंटरेस्टिंग वन, डेफिनेटली करने लायक सेट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, मे बी अ सेकेंड सेट पॉसिबली, right? So that is all about the set. And again, anyone who is preparing for cat 25, right, we have a complete batch, so the links are there in the description, you can definitely check them out, right? And we also have an ongoing snap batch, right, crash course. So if you're interested, you can definitely check out the details of that batch again in the description of this particular video, right? So I hope you understood this set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.